Now we will see how bottom-up parsers work. We will one by one discuss LR0, SLR1, LALR and CLR parsers. Okay, let me explain that what is the major difference between four parsers. इन चारों parsers के बीच में basic difference क्या है? The major difference is to construct the parsing table of LR0 and SLR1, we required LR0 canonical items, and to construct LALR and CLR parser, we need LR1 items. So one by one we will discuss what are LR0 items and we will construct a table of LR0 parser. इस वीडियो में हम देखेंगे पार्सिंग टेबल LR0 का किस तरह से जनरेट किया जाता है और LR0 कैनोनिकल आइटम्स किस तरह से क्रिएट की जाती है. Let us take an example. S tends to AA, A tends to AA and B. अब कैनोनिकल आइटम्स बनाने के लिए हमें सपोज करना पड़ेगा प्रोडक्शन रूल दैट इज S dash stands to S. Like first and follow. जैसा कि हम फर्स्ट एंड फॉलो देखें, इस LR0 में टू न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई है. दैट इज वन इज go to and other one is closure. हम जनरेट करेंगे और देखेंगे what is go to and what is closure. So first of all, write the production rules here. Like S dash stands to S, S stands to AA and A stands to AA and B. Now you have to input one dot in against of every symbol here. इस डॉट से रिप्रेजेंट होता है, दैट मीन्स कि इसके राइट हैंड साइड पे हमने इस सिंबल को विजिट नहीं किया है, एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डॉट रिप्रेजेंट्स दैट हमने इस सिंबल को विजिट कर लिया है. सो हियर इट इज एवरी सिंबल इज नॉट विजिटेड. सो नाउ फॉर एवरी प्रोडक्शन रूल हम सारे प्रोडक्शन रूल्स में से विजिट करेंगे. Like when from S dash we visit S, that is on S transition of S का ट्रांजिशन होगा इस प्रोडक्शन रूल में, तो हमें एक नया go to S dash stands to S dot. That means हमने S को विजिट कर लिया. It is known as applying of closure. हमने यहाँ पे closure अप्लाई किया. For next, that is S tends to dot AA. When there is transition of A in the second production rule, that means हमने A को visit किया. So here we can write S tends to A dot A. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे A प्रेजेंट है. That means हमने A को विजिट कर लिया और राइट हैंड साइड पे है नॉन टर्मिनल A, हमने इसको विजिट नहीं किया. अब कभी नॉन टर्मिनल को विजिट नहीं किया हो तो उसके प्रोडक्शन रूल्स को यहाँ पे लिखना है. दैट इज A stands to AA and B. Now in this part, अब हम A का ट्रांजिशन स्मॉल a ट्रांजिशन करेंगे. देन वी विल गेट A stands to A dot कैपिटल A स्लैश B. अब हमने स्मॉल a को विजिट कर लिया एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन सी इट इज कैपिटल A. सो हम A का प्रोडक्शन रूल लिखेंगे. सो A का प्रोडक्शन रूल इज AA एंड B. अब हम B का ट्रांजिशन करेंगे. So whenever we visit B, that is A stands to B dot. अब आप देख सकते हो कि हमारे पास दो स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें डॉट लास्ट पॉइंट पे आ गया है. दैट मीन्स दिस आर कॉल्ड फाइनल स्टेट्स.
these are represented as final state. अब हम आगे बढ़ेंगे, that is S tends to AA. Here transition of A will take place. हमने इस A को विजिट किया, so finally we get S tends to AA dot. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एम्प्टी है, दैट मीन्स हमें कोई भी प्रोडक्शन रूल नहीं लिखना है. अब विजिट करेंगे हम स्मॉल a. Whenever we visit, अब इसमें हम a को विजिट करेंगे, then we will get this production rule, that is we can directly write here, and from b, that is whenever we visit this b, we will get production rule this. And next one is here a stands to AA and small b. So हम विजिट करेंगे a dot a, that means we will get new production rule. A stands to AA dot. It is also known as final state. And now whenever we visit b, that means we get this state. Now as you can see, अब आप यहाँ देख सकते हो कि कभी यहाँ पे a के ट्रांजिशन पे हमें एक फाइनल स्टेट मिला, b के ट्रांजिशन पे सेम स्टेट मिला. Now one left is, that is a. a के ट्रांजिशन पे हमें सेम स्टेट मिलेगा अगेन. As you can see, this is known as canonical items, canonical LR0 items. अब हम पार्सिंग टेबल किस तरह से जनरेट करते हैं वो देखेंगे. सो फॉर दैट वी नीड टू नेम द टोटल स्टेट्स. I0, I1, I2, I3, I4, I5 and I6. Total number of states, that means I0, I1, I2, I3, I4, I5 and I6. हमारे पास टोटल 6 स्टेट्स, 6 plus 1, that is हमारे पास 7 स्टेट्स है. अब हम LR0 पार्सिंग टेबल जनरेट करेंगे. ओके, इन LR0 पार्सिंग टेबल देयर आर 3 कॉलम्स. यहाँ पे हम 3 कॉलम देख सकते हैं. नंबर ऑफ स्टेट्स, एक्शन एंड गो टू. इन नंबर ऑफ स्टेट देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, दे आर 7. एंड इन एक्शन पार्ट देयर आर टोटल टर्मिनल्स यूज A, B एंड डॉलर. डॉलर इसलिए यूज किया है बिकॉज हम डॉलर से वैलिडेट करेंगे कि हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है या नहीं. And in go to part we have to keep terminals that are S and A. Now let us start. 0 on S goes to 1, that means 0 on S goes to 1. 0 on S goes to 1. 0 on A goes to 2. 0 on small a, that is terminal, goes to 3. अब जब भी टर्मिनल आएगा, that means हमें यहाँ पे शिफ्ट लगाना है. We have to do 0 on A goes to 3, that is S3. 0 on B goes to 4, S4. ये था स्टेट 0 के लिए. नाउ फॉर स्टेट 1. अब आप देख सकते हैं स्टेट 1 इज अ फाइनल स्टेट. यहां पे हमें डॉलर में एक्सेप्ट लिखना है. अब ये हम तब यूज करेंगे जब हम इनपुट स्ट्रिंग को वैलिडेट करेंगे. नाउ फॉर स्टेट 2. 2 on A goes to 5. That is 2 on A goes to 5. ओके, स्टेट नंबर 2 में एक ही एंट्री है, दैट मीन्स दिस ऑल आर ब्लैंक. सॉरी, स्टेट नंबर 2 में 2 on small a goes to 3, that is 2 on small a goes to 3, S3. 2 on small b goes to 4, that is S4. Okay, now it is completed. State number 3. 3 on B goes to 4.
3 on B goes to 4. Shift 4. 3 on A goes to its own, that is S3. 3 on capital A goes to 6. Is 6. Now for state 4. As you can see, it is final state, so keep it empty. Same way 5 and 6. ये हमने सारे स्टेट्स के लिए फाइंड किया. अब फाइनल स्टेट्स के लिए हमें रूल्स चेंज करने हैं. फॉर फाइनल स्टेट्स you have to first of all name the production rules that are given here. Like S tends to AA, we can give number 1, हम इसको number 1 देंगे. And for second state, we have to divide it in A tends to AA and A tends to B. And now we will number it 2 and 3. अब final state I4. Final state I4 पे क्या है? A stands to B dot. अब LR0 पार्सर में हमें कभी भी फाइनल स्टेट पे दैट इज 4 पे प्रोडक्शन रूल के नंबर को लिख देना है. दैट इज R3, R3 एंड R3. सेम वे फॉर स्टेट 5 दैट इज प्रोडक्शन रूल S tends to AA, it is 1. That is R1, R1, R1. And for state number 6, we can see production number 2. That is R2, R2 and R2. अब आप देख सकते हो हमने LR0 पार्सिंग टेबल जनरेट किया है. अब LR0 पार्सिंग टेबल सारे LR पार्सर्स में से सबसे वीकेस्ट थे. और यहाँ पे जितने भी ब्लैंक एंट्रीज है, दिस आर नोन एज एरर्स. अब जैसे जैसे हम एरर्स डिटेक्ट करेंगे, दैट मीन्स हमारा पार्सर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. इन LR0 पार्सर्स you will have the least error entries in the table. Thank you so much.